Good morning, children. We already have done chapter number 3 with its worksheet and also read chapter number 4, A New Arrival. I hope you have written its difficult words. Now today I'm going to do its difficult words. First is disheveled. Disheveled means untidy, which is not clean. Second is emaciated means thin, weak. Third is scurrying means to run, to move. Fourth is ushering means showing in. Fifth is bewildering means confusing. Sixth is comprehension means to understand. Seventh is askew means improper. Eighth is scarcely means hardly. Ninth is audible means clearly heard. 10th is imitation means to copy. 11th is compressed means reduce. 12th is protruded means thrust forth. Next is regaled means twist. Next is tilt, to move. Last is an enthusiasm means interest. I am repeating. Disheveled means untidy. Emaciated means thin. Scurrying, to run. Ushering, showing in. Bewildering, confusing. Comprehension, to understand. Askew means to improper. Scarcely, hardly. Audible, clearly heard. Imitation, to copy. Compressed, reduce. Protruded, thrust forth. Wriggled, twist. Tilt, move. Enthusiasm, interest. Clear? Before writing these word meanings in your notebook, first of all read it, then learn it, and then note it down in your notebook. After doing word meaning, we will do its question answer. Listen carefully and understand its meaning. First question is, whom did Swaminathan miss the most and why? We already have read chapter number 4, A New Arrival. You know to whom Swaminathan was missed. Swaminathan किसको मिस कर रहा था? अपनी मदर को. And why? Swaminathan missed his mother the most. किसको मिस कर रहा था? अपनी मदर को. He felt uncomfortable without her attention and care. वो कैसा फील कर रहा था कि उसकी मदर के बिना उसको कोई भी अटेंशन नहीं दे रहा था. That's why he was missing his mother the most. Next, second question. Why was the entire household gripped with enthusiasm and excitement? के जो स्वामी का घर था उसमें सभी पर्सन ऐसे क्यों लग रहे थे कि जैसे कोई एक्साइटमेंट वाली बात है. Swami's, its answer is Swami's mother was expecting a baby. She was expecting a baby. Everybody in the household was busy. तो हर कोई वहाँ घर पे क्या था? बिजी था. The presence of a doctor, डॉक्टर की presence and his team, डॉक्टर और उसकी टीम की presence were preparing for a safe delivery. Clear? Swami's mother was pregnant. She was expecting a baby and doctor and his team were preparing for a safe delivery. वो preparation कर रहे थे कि safe delivery हो जाए. Right? Third is, who was expected to arrive? किसकी आने की expectation थी?
What preparations were being made for the new arrival? न्यू अराइवल मीन्स जो न्यू बेबी था उसके आने के लिए क्या क्या प्रेपरेशंस हो रही थी घर में? आंसर इज अ न्यू बॉर्न बेबी वॉज एक्सपेक्टेड सून। बेबी बॉर्न होने वाला था न्यू। मेडिसिन्स एंड हॉट वाटर वर एडवाइज्ड। तो क्या प्रेपरेशन हो रही थी? मेडिसिन दी जा रही थी और हॉट वाटर। एवरीबडी वॉज कमांडेड टू अटेंड स्पेसिफिक ड्यूटीज इंक्लूडिंग स्वामीज फादर। तो ये कमांड कौन कर रहा था? डॉक्टर। डॉक्टर कमांड कर रहे थे। जो भी घर में अवेलेबल था डॉक्टर सभी को ही कमांड कर रहे थे और सभी ही अपनी अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे थे। स्वामी के फादर भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे। क्लियर? अ न्यू बेबी, अ न्यू बॉर्न बेबी वॉज एक्सपेक्टेड सून। मेडिसिन्स एंड हॉट वाटर वर एडवाइज्ड। Everybody was commanded to attend specific duties, including Swami's father. Next, question number 4. Why was Swami put off with the lady doctor? स्वामी लेडी डॉक्टर से क्यों इरिटेट हो रहा था? According to Swami, डॉक्टर moved about as if the house belonged to her. डॉक्टर उसको ऐसे लग रही थी जैसे कि अपने ही घर में मूव कर रही हो। स्वामी वॉज इरिटेटेड बाय दिस। स्वामी को इस सबसे क्या हो रही थी? इरिटेशन। अकॉर्डिंग टू स्वामी, डॉक्टर मूव्ड अबाउट एज इफ द हाउस बिलोंग टू हर। स्वामी वॉज इरिटेटेड बाय दिस, राइट? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5. वाई डिड स्वामी फाइंड हिज मदर लुकिंग डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर डेज? स्वामी को अपनी मदर रेगुलर डेज स्वामी को अपनी मदर रेगुलर डेज से डिफरेंट क्यों लग रही थी? क्यों लग रही थी? क्योंकि शी वॉज एक्सपेक्टिंग अ बेबी। स्वामीज मदर वॉज अ बेड पर थी फॉर पास्ट 2 डेज। पिछले 2 दिनों से बेड पर थी और कैसे नजर आ रही थी? पेल, येलोइश, फीबल, वीक एंड डिसेबल्ड। डिसेबल्ड मीन्स अनटाइडी। वो डर्टी सी, गंदी सी, येलोइश फॉर्म में, येलो कलर में नजर आ रही थी। क्वेश्चन 6. व्हाट वाज द रीजन फॉर द मदर्स डिसेबल्ड अपीयरेंस? डिसेबल्ड मीन्स अनटाइडी। मदर की ऐसी अपीयरेंस का रीजन क्या था? आंसर, द मदर वॉज एक्सपेक्टिंग हर सेकेंड बेबी विच वॉज ड्यू सून। मदर क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? सेकेंड बेबी जो कि होने ही वाला था, राइट? नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन. हाउ डिड स्वामी डिस्क्राइब हिज न्यू ब्रदर टू पी? हु वाज पी? पी वॉज स्वामीज फ्रेंड। स्वामी अपने फ्रेंड को अपने न्यू बॉर्न बेबी के बारे में कैसे एक्सप्लेन करता है? स्वामी टोल्ड पी दैट हिज ब्रदर वॉज अ फनी लुकिंग क्रिएचर। उसको फनी क्रिएचर लग रहा था कि जैसे उसको देख के हंसी आ रही थी। छोटे छोटे उसके हैंड थे, उसका फेस चिल्ली की तरह था और ऐसी उसको और भी अपनी ब्रदर की बातें शेयर करता है। कौन? स्वामी। ही डेमोन्स्ट्रेटेड मीन्स कुछ करके दिखाना। ही डेमोन्स्ट्रेटेड बाय शटिंग हिज आईज, कि वो आईज कैसे क्लोज करता है वो करके बता रहा था पी को। कंप्रेसिंग हिज लिप्स, अपने लिप्स को कैसे वो फोल्ड करता है। फोल्डिंग हिज हैंड्स ऑन हिज चेस्ट, अपने हैंड्स को फोल्ड करके अपनी चेस्ट पे कैसे रख लेता है। प्रोट्रूडिंग हिज टंग, और अपनी टंग को कैसे निकालता है फिर अंदर करता है। एंड टिल्टिंग हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और कैसे अपने हेड को टिल्ट करता है। टिल्ट मीन्स कभी एक साइड पे कभी दूसरी साइड पे मूव करता है। हिज फेस वॉज रेड लाइक अ चिल्ली, तो उसका फेस कैसे डिस्क्राइब किया गया है? चिल्ली की तरह रेड। स्वामी told P that his brother was a funny looking creature. He demonstrated by shutting his eyes, compressing his lips, folding his hands on his chest, protruding his tongue, and tilting
tilting, TILTI, yes, tilting his head from side to side. His face was red like a chili. Next, question number 8 is, why did the Tamil Pandits attempts to silence the class fail to make an impact on the students? तमिल पंडित अटेम्प्ट कर रहा था, कोशिश कर रहा था स्टूडेंट्स को साइलेंस करने के लिए, चुप करवाने के लिए, और उसकी जो अटेम्प्ट थी वो फेल क्यों हुई? आंसर इज, द स्टूडेंट्स हैड फॉर्म्ड देमसेल्व्स इनटू स्मॉल ग्रुप्स. तो स्टूडेंट क्या कर रहे थे, वो छोटे छोटे ग्रुप्स बना के बैठे थे. एंड वर एंगेज इन टॉकिंग, तो वो क्या कर रहे थे, टॉकिंग कर रहे थे. The teacher's faint attempts to silence were ineffectual. टीचर ने उनको कैसे साइलेंस के लिए अप्रोच की थी? उन्होंने अपने टेबल को टैप किया था स्लाइटली, बट दैट वाज ineffective. The students had formed themselves into small groups and were engaged in talking. The teacher's faint attempts to silence were ineffectual. Clear? So today we have done word meanings and question answer. First of all, read these questions, then learn, and then note it down in your notebook. Thank you.